Assalamu alaikum, guys. This is Ali Bakir Khan with another podcast of Youth Alumni Association. Today, we've got Aiza Riaz Bhatt as well with us again. She's also, a vice president of Youth Alumni Association. She's working socially for us as well. And apart from that, we really like to have conversations based on her experience because being women, she's also a feminist. And the last podcast that we did, she spoke about women rights and, how we guys should actually make sure that we are giving women equal respect, and we quoted certain examples. So today, first of all, Isa, welcome again. How are you? Thank you so much. I am perfectly finally. How are you? I'm good as well. Thank you so much for asking. So I was just going through a quote in which it was written, be yourself and set the trend, don't follow it. That means we need to innovate ourselves, we need to come up with new ideas, we need to come up with positive ideas. And then Steve Jobs once said that, the most precious resource that I have is my time. So we should know how to, create a schedule of our own instead of rushing towards things that I think can be inappropriate at times, especially when it comes to the youth, and especially since it's for youth out there who's listening to us. So, Aiza, the topic of today's discussion is going to be regarding changing trends globally, and especially in Pakistan, because charity begins at home. So we're going to start from here, and then we'll see how the other countries are going ahead with it and how they're keeping up and how we are dealing with it, and does it actually help us out when it comes to our religion, or there are contradictions as well. So what would you like to go ahead and start off with? First of all, I would just like to thank you for giving me an opportunity to speak up at such an amazing topic that is of immense importance for our youth, for our women, for children, for our younger generations, and our generations to come. So the point is, Ali, that if I just say outrightly over here that we are basically doing the worst, playing the worst part in today's community, and the West is way ahead from us, and this and that, I won't brag about it. This is not true. The truth is that the Western society is equally messed up as in the Eastern society or the Middle East or Pakistan, to be particular. The Mhm. thing is that the issue with Pakistan and the underdeveloped countries, especially, is that they don't have anything of their self. For example, the West, the minimum, they have a culture, they have a trend, they are following, and it is original. Whatever it is, good, bad, whatever it is their own. But in Pakistan, we have just produced a number of copycats, and they are moving forth with nothing of their own and just picking up from one society and from another society, just taking chunks and pieces from all the societies and all the cultures and religions and everything, and this is going to be make up a big chaos. This is currently creating a big chaos. वो इसी तरह है कि जब आप अपने आप को भूल जाते हो और दूसरों को अपने अपनी ज़ात का ज़रिया बनाते हो, अपनी ज़ात की तशकील के लिए ज़रिया बनाते हो, तो वो दोनों चीज़ें नहीं रहती। ना बाहर की चीज़ रहती है, ना आप अपना आप रहते हो। तो वो एक एमल्गमेशन बन जाती है व्हिच इज़ एंटायरली यूज़लेस and hopeless as well. So जब हम लोग productive thinking के बारे में बात करते हैं ना, and when we try to be productive or practical about a problem, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपनी problem को identify करते हैं. So the identifying of problem here is कि हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, या हम कौन है, ट्रू सेल्फ क्या है, ये हमारे बच्चों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली हमारे बड़ों के ख्यालात, आइडियाज, थॉट्स, दे ऑल स्टार्टेड चेंजिंग। व्हाटएवर यू वांट टू ब्लेम इट फॉर, सोशल मीडिया को ब्लेम कर लें, केबल को ब्लेम कर लें, रेडियो को एक वक्त पे ब्लेम कर लें, जिस भी चीज को आप ब्लेम करना चाहें। आई गिव यू एन ओपन चॉइस के बस यानी ये हो गया, जिस भी चीज की वजह से हुआ है Blame game थोड़ा थोड़ा create हो गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन। that's what you're trying to say. एक ऐसी चीज ऐसा हो गया है कि उनको, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कभी आपने
स्कार्फ वाली बार्बी डॉल नहीं देखी, या सिंड्रेला ने आज तक कभी हिजाबी सिंड्रेला नहीं थी, या फिर कभी भी कोई ऐसी सुपर सुपर हीरो नहीं आया जिसने टोपी पहनी हो, या फिर वो मुस्लिम हो किसी भी मूवी में, किसी भी कार्टून में। और पाकिस्तानी तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बनाना, ऐसी चीजें बनाना गुनाह समझते हैं ना, कि उन्होंने तो बस ये चीजें करनी नहीं है। उन्होंने बस वो जो है, वो जो इधर से प्रोडक्शन है उसको कंज्यूम करना है, उन्होंने खुद क्रिएट कुछ नहीं करना। लेटली आई हैव बीन नोटिसिंग कि ऐसे अच्छा हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है। अगर आहिस्ता-आहिस्ता मुसलमान इस चीज़ में आ जाए, मुसलमान क्या पाकिस्तानी या इंडियंस इस चीज़ के अंदर भी आएँ अगर, तो एट लीस्ट they can represent their culture, their tradition and their self in a bit. हमारे दिमाग में अब एक स्केच है एक घोड़े का, और वही सिर्फ हीरो हो सकता है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो विलन है, और जी वो इस तरह। और इसमें इनमें घोड़ों का कसूर नहीं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अपना ही प्रोड्यूस That's करेंगे their ना, own culture, उनका na? राइट है। That's what they've created for themselves. So वो that's क्या what they're करेंगे following. जाके आपके कल्चर के बारे में बात करें, व्हाई वुड दे, व्हाई शुड दे? तो इस वजह से अगर आप खुद नहीं प्रोड्यूस करोगे, आप खुद नहीं करोगे कुछ भी, तो आपके बच्चे कल को यही होगा ना कि वो जिसको रोल मॉडल देख रहे हैं, जो उनके सामने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ गुड एंड बैड, तो वो उसी को अडॉप्ट करेंगे। सिंपल इज दैट। और Hmm. एक टाइम आएगा कि उनके दिमाग के अंदर ये गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा that it would be impossible to say otherwise. Isa, one thing that I would like to add, thank you so much for elaborating and starting off with this idea, is good or bad की आपने बात की है. So there are pros and there are cons. Like for example, if we are using internet like you and me together, so we are talking about a problem, ठीक है? तो the problem that is there, and we are trying to identify it. So that's a positive use of social media, I must say. So if similarly, if people like you and other people, you know, and people like me can start off, today there are two people, tomorrow there are going to be four, and multiplying, you know, we guys will have a lot, including, you know, a lot of people in which they might have that thing in themselves that के हाँ जी हमें अपना कल्चर को रियलाइज करना पड़ेगा. अब सबसे पहले जो एक सोशल टैबू एक जो हमारा चल रहा है, दैट इज कि हमारा एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है कि वी थिंक के इंटेलिजेंट सिर्फ वही है शायद, इवन दो आई मीन you've been working for foreign companies. I have been working for foreign companies for like 10 plus years. I mean, 80% of the times I have to speak in English. Because that's what my job is like, right? But it does not mean कि मैं ये भूल जाऊं कि यार I'm in Pakistan, तो मैं अगर बाहर जा रहा हूं तो मैंने अपनी उर्दू भी is my language, right? I'm not supposed to forget that. जिस तरह इकबाल के कुछ शेर हैं, जिस तरह वो लब पे आती है दुआ हम स्कूल में सुनते थे. So my point is कि maybe it's do you think it's because of you know this thing that you guys have these days कि भाई आपके पास Instagram है, फिर वही चीज आप Facebook पे करते हैं और फिर वही चीज आप WhatsApp पे रिपीट कर रहे होते हैं. तो I don't get the point of posting one thing a million times and then you're like viewing कि यार इसमें कितने लोगों ने देखा है, अच्छा इंस्टा पे क्या रिजल्ट्स है. और अब हो क्या रहा है कि बिजनेसेस भी यही चीज फॉलो करने लग गए हैं. तो नाउ यू नो देयर इज अ ट्रेंड दैट्स चेंजिंग. आई स्टिल रिमेंबर कि अभी भी मेरे पास लाइक डॉन न्यूज़पेपर आई रीड ड्यूरिंग वीकेंड्स, बट अब उस तरह से मैं नहीं पढ़ता जितनी ईगरनेस मेरे में होती थी व्हेन आई वाज अ टीनेजर. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम माय मॉम एंड डैड दे यूज्ड टू रीड इट. ठीक है, आज भी अगर आप कुछ पुराने लोगों को देखें, दे डोंट लाइक टू गो टू द सोशल मीडिया, दे लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स हैं, कुरान है, ये सारी चीजें हैं, तालीम और तरबियत है. तो दैट थिंग इज कंप्लीटली मिसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आजकल के बच्चे दे आर वेरी एग्रेसिव, और अगर पेरेंट्स को कहें कि जी क्यों एग्रेशन है, तो वो कहते हैं यार कार्टून्स देखते हैं, पोएम्स देखते हैं. तो माय पॉइंट इज स्टिल ये चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. But when it comes to solutions, so how do you think, is that even possible to think about the fact that we're going to change as a society, or it's better to protect your own feet instead of carpeting the whole earth? What do you think about that? Ali, just like you said in the beginning, that charity begins at home. So every kind of change begins at home. And in this particular situation, it begins at your personal heart and mind. You have to be the trend breaker.
You just have to be focused on that, be very conscious about what's good and what's bad, what's happening around. You just Yeah. have to be utterly conscious about that. Yeah. If you're conscious enough, then you will be able to break this trend. यानी आप अपने ट्रेंड कैसे, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि मोहल्ले की मस्जिद में जाके आप ऐलान कराएं कि यार ये सोशल मीडिया बंद कर दो, ये हो गया, ये फितना हाँ. यहूदियों का छोड़ा हुआ ऐसे साजिश है ये, और दिस इज नॉट गुड। आप जैसे अभी न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे या और ट्रेंड्स की बात कर रहे थे जो पुराने ज़माने में होती थी, जैसे हमारे वालिदैन जो हैं वो फजर के टाइम उठते थे, दोबारा नहीं सोते थे, वॉक पे जाते थे, काम करते थे, ये वो वगैरह, रात इशा के बाद वो लोग सो जाते थे। ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। लेकिन द थिंग इज़ मुझे हमेशा ये लगता है जैसे जब भी मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट पे चले जाओ, आप वो उसके पास चले जाओ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। अब वो हैं सारे 70s वगैरह के, 60s वगैरह के लोग, ठीक है? जी. बाबे-भाभियाँ हो गए, ज़ाहिर-सी बात है वो हमसे बहुत बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं। वो उन्होंने वो वाला वक़्त देखा हुआ है और वो सबसे आपकी सारी बीमारियों की वजह आपको क्या बताएँगे कि आप सही टाइम पे सोते नहीं, आप स्ट्रेस. सही टाइम पे खाते नहीं। हाँ छोटे जी। बच्चे कहने लगे यार, आई एम इन सो मच स्ट्रेस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई नीड हाँ, प्रिवेसी. किस किस्म की प्रिवेसी चाहिए यार आपको? फिर जब वो प्रिवेसी चाहिए होती है तो वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो मूवीज देखते हैं. पेरेंटल, अच्छा, वन थिंग इज कि आपने वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये कल्चर, बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग टू लॉट ऑफ माय कॉलीग्स इन अमेरिका, अफ्रीका वगैरह में, दे हैव प्रॉपर प्रॉपर रूल्स फॉर देयर हाउसेस. यू नो, अगर उधर कोई मसला हो तो दे जस्ट से डायरेक्टली कि यू आर ग्राउंडेड. Are you getting my Hmm. point? So Yes. your grounded point is कि वहाँ पे it's like, you know, I don't know what happened here. Just give me one It's sec. okay, you just raised your hand, I I guess. didn't do that, but anyways, whatever it is, like maybe I think because of some cursor issue or whatever happened. Anyways, point being is मैं आपको ये कह रहा था कि you know there are rules. So if there are like, you know, आपने movies में शायद देखो, then there is a PG, like जिसके अंदर एक age दी होती है एक certain movie की. यहाँ पे Hmm. कोई वो एज नहीं देखता और वो कहते हैं हाँ जी मामा देख रही हैं तो हम भी देख लेते हैं. मामा थोड़ी देर के Hmm. लिए, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मूवीज विद माय मदर ऑन स्टार मूवीज. तब आपको पता है स्टार मूवीज और एचबीओ का ही दौर था. तो शी यूज्ड टू कीप अ चेक एटलीस्ट कि नहीं यार, यू नो. बट आई आई थिंक दैट वाज रॉन्ग एज वेल कि भाई आप एक मूवी पहले खुद देख लें, उसके बाद बच्चों को बिठाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो मेकिंग श्योर कि आपका इंटरेस्ट ना वो वेग हो तो आपने बिठा दिया. It's not about my mother, but again, charity begins at home, right? So I would try to blame my parents in that way कि this is how it started. तो अब क्या होगा कि मैं अपने बच्चों को शायद कहूंगा यार it's very easy. Like for example in Ramadan, if you're moving up, आप जो billboards आप देखते हैं, to be very honest about it, there are models. I do understand and I do respect that profession. ये ना होना कि फिर वही फेमिनिज्म में एक पूरी मेरे ऊपर चल पड़े कि जी आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो अगेंस्ट फेमिनिस्ट है. See, there are boundaries that we guys need to create. There are certain rules that we guys need to establish. Hijab पहनना ना पहनना, it's not the concern. Islam में for the guy it's the same as for the girl, right? I mean, guys के लिए भी there is a proper उसमें दिया हुआ कि जी आप अपनी नजरें झुका के चलें. This is how you're supposed to act like. And for a woman, it's like when you're going out, just make sure that you are properly covered. अब आप चाहे जीन्स और शर्ट पहने या आप स्कर्ट पहने या आप शलवार कमीज पहने, कवर्ड का मतलब होता है कि यू नीड टू ड्रेस इन अ सूटेबल मैनर. दैट्स प्रीटी मच इट. तो इसके ऊपर इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है कि जी हिजाब करना है नहीं करना, बिकॉज ट्रेंड्स आर चेंजिंग एंड वी नीड टू मूव अलोंग विद दोस ट्रेंड्स एज वेल. दैट्स आल्सो वन थिंग. अगर हम नहीं कोप अप करेंगे तो शायद फिर यू नो एक सिचुएशन हमारे पे भी ऐसी आ जाए कि यू नो हम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मयाना रवैया का हमें कहा है कि जी यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर लाइफ. सो व्हाट डू यू थिंक is a routine, especially this point would go towards the parents these days, that how should they you know start up bringing and raising their children, because yahan se ek triangle banta hai. We cannot totally rely on the schools. न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई ना, छोटी छोटी फैमिलीज, इंडिपेंडेंट लाइफ हमें चाहिए ताकि हम लोगों को कोई पॉइंट आउट ना करे. फिर हम कहते हैं यार टीचर्स नहीं सिखा रहे. तो व्हाई डोंट वी टेक द ब्लेम ऑन आवरसेल्व्स बीइंग अ पेरेंट and start raising our children the way we our elders were raised. हम ये नहीं कह रहे कि अब आप अगर पंजाबी सराइकी नहीं सिखा रहे तो चलो एटलीस्ट उर्दू की तरफ तो लेके आए ना, जो आपकी कौमी जबान है उसको तो मत भूलें. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बस अली इस तरह है
कि the world is trying to break boundaries as hard as they can. They are trying to be limitless. Humans are trying to be limitless. यानी जेंडर भी नहीं दो रहे, ठीक है? जेंडर भी 100 किस्म के हो गए हैं जी, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी 100 किस्म की हो गई है। ऐसे आपको नहीं पता सामने खड़ा हुआ लड़का या लड़का, आप उसको लड़का लड़की नहीं कह सकते, उसके उसकी इंटरेस्ट क्या हैं या बेसिक व्हाटएवर इट इज, एग्जैक्टली। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप ये हो। तो ये इंसान की फितरत है कि दे ट्राई टू ब्रेक थ्रू, एंड इट इज वेरी प्रोमिनेंटली सेड इन इस्लाम कि दिस वर्ल्ड इज अ लाइफ ऑफ ट्रायल, कि ये तो सिर्फ आपकी एक इम्तिहान की जगह है। एंड जब भी आप और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अकॉर्डिंग, फॉर अ मोमेंट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ प्रिजन, जहाँ पे उसको बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उनकी पाबंदी करनी है, एंड देन दे कैन जस्ट मूव फोर्थ टू अ बेटर एंड बेटर प्लेस इन द आफ्टर लाइफ। सही। तो इस वजह से अगर तो हम इस बिलीफ को, अगर हम अपने रिलीजन को निकाल रहे हैं अपनी जिंदगी से, तो पूरी तरह निकाल दें फिर इसको, ठीक है? दैट्स माय बेदीने पॉइंट। ना या तो रहें, फिर आप वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो करें, आपने बच्चों के कह जी फिर 16-17 हाँ, इयर्स में जो वो लोग करते हैं, गो टू द एंड हैव अ गर्लफ्रेंड, अ बॉयफ्रेंड, एंड यू नो जस्ट आई मीन आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, ठीक है, देयर इज वो नो मोर। आपका टीचर अगर हाँ, बटेर है कि आप कहीं नहीं जा रहे, तो एटलीस्ट उनकी सक्सेस तो फिर हासिल कर लो ना, वेस्टर्नाइज होके पूरी तरह। वो जो जितने ओपन है अबाउट लर्निंग, अबाउट सक्सेस, क्योंकि उनकी तो यही दुनिया है ना, सब कुछ जो भी है यही है, यहीं पे कमाना है, जल्दी जल्दी ये इतनी सक्सेसफुल होना है, ये करना है, पैसा कमाना है बस उन्होंने यहाँ पे। तो ये जब अगर आप अपनी ये वाली दुनिया तो फिर संवार लो ना, अगर कंप्लीटली वेस्टर्नाइज होके। अगर एग्जैक्टली। नहीं, इफ यू आर इनटू रिलीजन और आप इस्लाम को कबूल करना चाहते हो, तो वो है ना कि इस्लाम में फिर पूरे दाखिल हो जाओ, फिर पूरी तरह एंटर हो। फिर ये नहीं है कि आप कुछ भी आप हिजाब ना करो तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल क्लियर लिमिट्स हैं हमारे ऊपर जो डाली गई हैं, और कुरान मजीद के अंदर डाली गई हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद वंस ओन विल, या क्योंकि आपकी विल तब आती है जब आप एक रिलीजन को निगेट कर देते हो। मैं नहीं मानता, मैं नहीं what करता, you were मैंने trying to नहीं say, करना। either choose path A or either choose path B, in the middle of nowhere में क्या होगा ना, आप लाहौर जाएंगे ना आप मुल्तान की तरफ जाएंगे, you're gonna stay between you जब know both the places. जब आपका माइंड कंफ्यूज्ड होगा, तो आपकी ब्रीड भी कंफ्यूज्ड ही पैदा होगी, जो आपकी अगली नस्ल है वो भी हाँ, मतलब कंफ्यूज। you're gonna have dual thoughts के यार, अब एक तरफ मैं वेस्टर्नाइज्ड भी हूँ। अब आपने काफी नोटिस किया होगा इन वेरी डिफरेंट एटमोस्फेयर्स, बिकॉज आई बीन वर्किंग एज वेल, लाइक हम जाते हैं उठते हैं बैठते हैं, कि पीपल एट टाइम्स या तो वो फुल मजहबी हो जाते हैं, इवन मेन, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट वुमेन। अगले दिन जी दाढ़ी रख लिया, आप उनको कहते हो क्या हो गया, नहीं जी बस मैं रिलीजियस हो गया, मैं तबलीग पे जा रहा हूँ। 10 दिन बाद वो क्या होता है, वो फिर 10 दिन बाद दोबारा अपना ट्रेंड चेंज करके वो कहते हैं नहीं यार, मुझे लगता है कि इट वाज टू मच, आई वाज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ माय सेंसेस, यू नो, आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट। हमारा हमारा हाँ, जो अली मजहब है, मैं एमफिल कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज में, माशाल्लाह। एंड आई एम डूइंग वेल इन लाइफ एज वेल। ये नहीं है कि मैं पर्दा करके चार दीवारी में बैठ गई हूँ और जी ये हो गया, बंद हो गई हूँ, मैं बिल्कुल, No, मैं you're talking यूनिवर्सिटी about जाती हूँ, everything. I mean, you're talking about मैं all the बाकी aspects. करती हूँ, मैं हर चीज करती हूँ, मैं होटलिंग करने जाती हूँ, मैं खुशबाश हूँ, मुझे किसी ने कैद नहीं किया हुआ, कोई मुझे मार पीट नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। मजहब को इन्होंने हवा बना दिया कि जी इससे थोड़ा सा ना दूर रहना, जो ये होते हैं ना ये लोग रिजिड, इसमें मजहबी लोगों का भी कसूर है कि वो मजहब को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं जैसे इट इज एज इफ अ वेरी रिजिड थिंग, कि अगर आप उसके यहाँ हल्का सा इधर उधर हो जाओगे तो आप जो वो काफिर हो जाओगे, या आपको कत्ल कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो Exactly, कुछ exactly. You're totally right. जिस तरह मुझे मौलवी साहब ने कहा जी आप हाफ स्लीव्स पहन के नमाज पढ़ेंगे, इस लाइक कि आपने ना पानी में मक्खी मिलाई हुई है। एंड आई वाज लाइक मैं एटलीस्ट मस्जिद आगे पढ़ तो रहा हूँ ना, आई मीन डोंट गिव मी दोस थॉट्स। मेरा तो ईमान है कि मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, यू नो, एंड आई मैं सजदा अल्लाह की राह में कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज यही हमारा सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक तरफ विमेन राइट्स आ रही हैं कि जी लेट मी डू व्हाट आई वांट टू, मेरी मर्जी, जो मर्जी मैं करूं। वहां से मेन रिप्लाईज कर रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, सो वी टेकिंग इट एज अ जोक। वी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी आर नॉट इवन टेकिंग दिस थिंग सीरियसली, ठीक ये है। जोक जोक में हमारी अगली नस्ल जो है उसकी तबाही हो रही तबाही है, हो रही सीधे है, एंड दैट्स माय पॉइंट, लाइक सी एटलीस्ट इन फ्यूचर अगर मैं देखें, वी गाइस बिलीव इन वन थिंग दैट्स डूम्सडे, कि क़यामत आनी है। उस दिन आपसे अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे कि यार व्हेन यू वर लुकिंग इनटू इट व्हाट डिड यू डू।
तो एटलीस्ट आई वुड हैव वन आंसर कि यार आई वाज जस्ट डूइंग माय पॉडकास्ट, नाउ देयर आर व्यूअर्स, मैंने वो अपलोड कर दिया, अब अगर उस पे मिलियन व्यूज नहीं आते तो वो मेरा कसूर नहीं है, दैट्स समथिंग दैट्स नॉट अंडर माय कंट्रोल. सो कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, let's talk about specifically youth. We spoke about the parental thing, कि जी what should they do, how should they implement that thing. उनको obviously खुद करना पड़ेगा, अपनी पहले तो अपनी routines आप streamline करें, make sure करें कि इतने पैसे के पीछे आप ना वो चले जाएं कि because we have a thing in ourselves कि अगर नहीं होगा तो बच्चियों के रिश्ते कैसे होंगे, hi-fi life. पैसा आ जाता है, अल्लाह ताला इज द वन हु इज सपोज्ड टू गिव इट टू यू, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, देयर इज नो डाउट. आप स्टडीज अपनी पूरी करें, मुकम्मल करें. इवन इफ यू आर देयर विद गाइज, देयर इज, आप देखें जब व्हेन यू आर इन मक्का मदीना, जब आप उम्रा और हज करने जाते हैं तो तवाफ में लेडीज के लिए अलग जगह नहीं है. ये नहीं है कि जी लड़कियां अलग होंगी लड़के अलग, क्योंकि लोगों को पता है कि वो इतनी पाक जगह है. तो मेजॉरिटी ऑफ देम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक कि जी दे डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, राइट, बिकॉज दे नो कि जी वो अल्लाह के घर में है. तो इसीलिए अगर वहां पे ये हो सकता है, सिमिलरली वी गाइस कैन स्टडी टुगेदर, इसमें कोई हर्ज नहीं है. बट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी नो आवर बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज आपके वालिदैन आपको सिखा सकते हैं. ठीक है, ऐसा यू कैन नॉट टीच मी एट दिस एज के अली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हाट नॉट टू, एंड आई कैन नॉट टीच यू अबाउट इट. ये वो वैल्यूज हैं जो आपके घर से बचपन से आप में सिखाई जाती है. जितना कहते हैं जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके आए आप, रिजिड मत हो. मतलब मैं आई वुड डू टू माय सन इज प्रोबेबली, मैं कहूंगा यार चॉकलेट खानी है, वो कहेगा हाँ जी खानी है. मैं कहूंगा ठीक है, फिर मुझे ऐसे करो 2 दिन नमाज पढ़ के दिखाओ ना जरा, मैं तुम्हारे लिए पूरा बंडल लेके आऊंगा लिंडोर का. ठीक है, he's gonna be excited about it and I don't mind doing it. It's not like वो दिखावे की पढ़ है, it's just the fact that I'm training him कि तुमने 5 वक्त वजू करना है, जिसकी अब ये चीजें हम भूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. फिर what happens is कि we are going to the restaurants, फिर हम वो मूवीज देखते हैं, फिर हम ऐसी सोसाइटी में उठते बैठते हैं कि हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई बुराई लगती ही नहीं है. So that's one thing. Now coming towards the youth, the reason of this podcast and the purpose is that I just need to highlight कि all those guys out there who are working hard, all those girls out there who are actually working hard and who are dressing entirely fair, या जिस तरह भी हैं, या कोई ऐसे लोग भी हैं जो नहीं कर रहे, it's not about कि हम उनके ऊपर कोई टैग लगा रहे हैं. Everyone has their own will. अब हमारी जो इस्लामिक डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है. तो if a woman is wearing jeans or t-shirt, I don't mind that. If I'm wearing a shirt or shorts, that's something that, I mean, I personally have that thing in my own care, whether it's appropriate or not if I'm going out. हम सबको ये पता है कि जब हमने वलीमा अटेंड करना है तो we have to be suited booted, right? आप लोगों ने जाना है तो लड़कियों ने साड़ियां पहननी है और ये करना है, तो जब हमें वहां के नॉर्म्स पता है तो हमें बाहर के भी नॉर्म्स पता होना चाहिए कि किस तरह हमने कैजुअली ड्रेसअप होना है, which is very much obvious. So what would be your points towards the youth, not just in Pakistan but globally, कि अगर चले इतना आप 100% नहीं तो एटलीस्ट ये रूटीन फॉलो करें, these are the steps that you should take, जिसके थ्रू it would be minimized, if not 100% but 60% आप इसमें improvement देखेंगी. So what do you think about it? The thing is कि पहले जब आपने पैसे की बात की एंड ऑल दैट, उसके बारे में मैं एक कमेंट देना चाहूंगी कि आई ऑलवेज थॉट कि रिस्क का जो है ना ठेका वो अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है, बट इंसान सबसे ज्यादा रिस्क के पीछे भागता है. और औलाद की तरबियत का ठेका अल्लाह ने नहीं उठाया, जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया कि मैं तुम बेफिक्र हो, तुम लोग रिस्क कमाओ, मैं तुम्हारी औलाद को अच्छी तरबियत दे दूंगा, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा. लेकिन इंसान हमेशा यही सोचता है बस मैं कमा लेता हूँ और फिर तरबियत इनकी अच्छे इंसान ये खुद ही बन जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, कि क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी जिंदगी में. योर प्रायोरिटी इज हेल्थ और योर प्रायोरिटी इज जंक फूड, योर प्रायोरिटी इज आउटिंग और योर प्रायोरिटी इज बीइंग अ मशीन एंड वर्किंग ऑल डे एंड नाइट. तो इस वजह से आपको अपनी सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है या फिर फेक सोशल स्टैंडर्ड्स आपकी प्रायोरिटी है. क्योंकि आपको जब आप एक पूरी इन्वायरमेंट से अलग अपने बच्चे को लेके चल रहे होते हो ना,
क्योंकि वो एक गंदी हो गया ना सारा कुछ, हम्म सारा सिस्टम खराब हो गया। तो अब आपने जब उसमें से निकलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उससे निकलने के लिए, उससे अलग होने कंफर्ट के लिए। जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा आपको थोड़ा हाँ, सा। वो कोई कहेगा ये क्या, ये तो ये करते ही नहीं है, हम लोग करते हैं, वो कजिन्स हैं, या तो यहाँ व्हाट पे कोई इन और व्हाट यू रिलेटिव है। ट्राइंग टू से इसके तो कंफर्ट जोन से निकलें। और थोड़ा यस, सा हाँ। देखें, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बड़ी जगहों पे है कि जी, और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, दैट मींस द वर्ल्ड इज योर्स, गो अहेड एंड देखें आपने अल्लाह ने एक्सप्लोर क्या क्या करें, हाँ एक्सप्लोर हाँ। इट, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। अब अगर तो आप किसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पे ड्रेसिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर वहां पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक हाँ, श्योर कि आप जस्ट अल्लाह बी से कह दें कि यार अल्लाह मुझे योरसेल्फ। माफ करें, बट पॉइंट इज कि नहीं, मैं आप तो, अपना हाँ, अपना करें, अपना जिस तरह जो आप हो वो करो। दैट्स इट। यू यानी जब आप ये कहते हो कि यूर फ्री टू वेयर अ बिकिनी मे बी, और यूर फ्री टू रोम अराउंड नेकेड, जो वो है नेचुरलिस्ट्स हैं, हाँ दे हाँ, बिलीव वी वर बोर्न नेकेड सो वी शुड बी नेकेड। जब वो बीचेस हैं इस अपने तरह इस के जिधर बिलीफ के ऊपर, हाँ, वो एग्जैक्टली। अपने बिलीफ इतने फर्म है, विच इज नॉट इवन अ डिवाइन बिलीफ, जो कि उनको खुदा की तरफ से भी नहीं मिला, किसी रूहानी हाँ, किताब तो से अब भी अगर नहीं हमें मिला, वो ऐसे लोग उनका। नजर आ जाएं तो व्हाट वी कैन डू इज कि हाँ जस्ट अवॉइड इट, दैट्स इट, सिंपल, हाँ, इंस्टेड ऑफ, अवॉइड। उसमें और हमारा जब गुनाह तो नहीं है रसूलुल्लाह ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी वक्त का बताया, तो उन्होंने ये बताया ना कि फितने से बच के गुजरना बच के इतना रहो। मुश्किल हो जाएगा कि जो अच्छे लोग होंगे वो घरों में बंद रहने लग जाएंगे। सो हाँ, दिस हैज प्रोबब्ली कम द टाइम जब आपने फूंक फूंक के कदम रखना है, बस आपने हर पॉइंट पे, दिस इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल। जरूरी नहीं है आप एक दिन पास हो, जो इसमें एक दिन में ये अचीव हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ये आपको हर दिन करना है विद कंसिस्टेंसी, विद रिन्यूड फेथ। आप सबसे पहले तो ये चीज है कि बी श्योर अबाउट योर आइडेंटिटी, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कॉन्फिडेंट होने का एक तरीका ही होता है कि यू डिसाइड इट विद योर सेल्फ, विद योर हार्ट, विद योर सोल, विद योर माइंड, अलाइन कर लो तीनों चीजों को कि व्हाट एम आई। क्या मैं मुसलमान हूँ? एम आई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? मुस्लिम जो होता है वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग ही होता है, देयर इज नो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वो होता है ना कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। इसमें इस्लाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इस्लाम चीज नहीं एक है, ला दीन इलाहा है। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स इट। हाँ, अच्छा, वो एक एक बात मैं जाविया ऐड करूंगा, हयात है। आपने जिस तरह बात की कुरान में देयर इज आयत सूरत तगाबुन में, उसका तर्जुमे में एक वर्स है, उसमें कोई आप लोगों ने अगर वेरीफाई भी करना है तो उसमें लिखा है कि जी माल और औलाद जो है वो आपके लिए एक आजमाइश है। आजमाइश है। ठीक है, दैट मीन्स के हम उस आजमाइश में कहीं इतना खो गए हैं कि वी गाइस डोंट हम्म, नो आवर इनर सेल्व्स एनी मोर। वी गाइस थिंक दैट इट्स हम्म। ओके टू earn money through all those means that are not even appropriate. I'll be very honest about वो it. हमें सबको पता है यहाँ कि, पे एक जी, पंजाबी का शेर है ना, वो अक्सर मेरे बाबा बोला करते हैं कि जिन्ना लई तू पाप कमाए कित्थे ने तेरे कर ले। यानी जब इंसान मरेगा तो जी, वो यही उससे पूछा जाएगा कि जिसके लिए तुमने हराम कमा कमा के अपनी वो कब्र कहाँ गए भरी वो है, लोग, वो हाँ, कहाँ है, वो अब तो वो शायद तुम्हारी कब्र में मदद के फातिहा भी नहीं लिए। पढ़ने आते होंगे छह हाँ महीने में एक हाँ, दफा। वो ठीक है, तो पढ़ भी लें तो उनका कोई फायदा नहीं होगा आपको पढ़ने का, वो आपको आपने जो क्या अपनी फायदा है कि तकलीफ वो की जिस वो जिस आपको गाड़ी में वो आया है और भुगतना वो फातिहा पढ़ रहा है, जो है। मील वो खा रहा है आपके बिजनेस पे, आपने इनिशिएट तो उसको करप्शन से अच्छा, फिर लोग बहुत इजीली कह देते हैं जी क्या करें। फिर कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जी वर्स्ट केस सिचुएशन में तो ड्रिंकिंग भी अलाउड है, कि अल्लाह ने कहा है अगर आप मरने वाले हैं तो फिर आप यू कैन हैव अल्कोहल। तो वर्स्ट केस सिचुएशन ये नहीं है कि अगर आपके घर मटन खत्म हो गया है तो आप कहें जी मैं दाल पे गुजारा नहीं कर सकता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट इट के जी वर्स्ट केस सिचुएशन ये है कि अल्लाह माफ करे कि कोई किसी ने कोई आपको ब्लैकमेल इतना कर दिया है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देन ऑब्वियसली सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन इन इस्लाम, देन दैट्स द ओनली वे। फिर उसमें आपका गुनाह नहीं है, फिर उसी का गुनाह है जो आपको फोर्स कर रहा है कि यार ठीक है आप करप्शन करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करप्शन यस। मीन्स जो भी एबीसी एक्स वाई जी चीजें दुनिया में चल रही हैं। तो आई विल गिव दैट मैसेज टू ऑल द पीपल आउट देयर दैट नेवर थिंक दैट यू are incapable of doing anything in your lives. You've got all the potential. Start studying Islam. Start studying religion and have faith in Allah. अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं। आते ये हैं। तो सो डोंट, या, यहाँ पे मैं ना सिर्फ इसको रैप अप करने के लिए, ताकि हमारी डिस्कशन से कुछ हेल्दी हाँ जी, आउटकम जस्ट निकले, लास्ट 2 मिनट्स उसके में आप रैप अप कर दें। एक्शंस जो हैं हाँ वो जी, मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने से बात करें, और सेल्फ टॉक। डिसाइड करें कि व्हाट आर यू एंड व्हाट पाथ यू वांट टू टेक। और दोनों पाथ्स, जो किसी भी चीज को डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि आप उसके एंड को देखते हो कि अगर मैं ये पाथ लूंगा तो मैं इतने 20 साल बाद, 30 साल बाद, या मेरी नेक्स्ट जनरेशन
कहाँ खड़ी होगी। इस हम्म। तरह सोच के अच्छी तरह बैठ के आप इसको डिसाइड कर लो कि या तो हमने सारी जिंदगी जिंदा रहना होना, तो चलो ठीक है, हम ये पार्टियां करते रहें और ये सारा कुछ हो जाए, सही अच्छी मतलब अगर जिंदगी दुनिया ही गुजरे। जन्नत हो जाए तो फिर जन्नत की तरह एंजॉय हाँ करें ना, व्हाई डू यू नीड टू हाँ स्टे हाँ लाइक दिस, आई मीन जस्ट बी हाँ ओपन अबाउट हाँ। एवरीथिंग, जहां जाना है और जाओ यार। अपनी इंजॉयमेंट का सिर्फ डेफिनेशन चेंज करनी है आपने। इंजॉय आपने तब भी करना है। अब मेरी इंजॉयमेंट क्या है, फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से डिसेंटली जाके खाना खाओ, आप इंजॉय करो, अपनी गाड़ी में जाओ, घूमो फिरो। अब उसके अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर लड़के या ड्रिंकिंग है ये वो वगैरह इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, बिकॉज आई डोंट एंजॉय दैट स्टफ। हाँ, एंड इफ यू यू माइट इवन टेक एंजॉय, पिक्चर्स एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, दैट्स या ओके। ठीक है, हाँ, एज लॉन्ग एज यू थिंक देर I live अप्रोप्रिएट, the दैट्स moment. फाइन, दैट्स द होल I पॉइंट, live राइट। the moment and I am whole with it. I am content with it. तो हाँ। सबसे पहले आप अपना डिसीजन लो, फिर आप अपनी रूटीन को प्रायोरिटाइज करो कि जैसे उसको डिवाइड करके कि यार मैंने इतने, फॉर एग्जांपल आप उठते हो रोज 12 बजे या 1 बजे दोपहर के, आप सोचो मैंने 1 घंटा पहले उठना, बस 1 घंटा या आधा आहिस्ता घंटा आहिस्ता आहिस्ता हाँ आहिस्ता आप आहिस्ता फजर टेक पे इट। आ जाएंगे और आप हाँ, शुरू वो करना। अगर आपसे फजर नहीं पड़ी जाती, आप वैसे तो फर्ज नमाज की बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान हर हाल में करे। नहीं पड़ी जाती तो एक नमाज से शुरू करो, 2 नमाजों पे आओ, 3 से शुरू करो। अगर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी दैट आप तो नफली नमाजों पे आने लग जाओगे, तहज्जुद पे आने लग जाओगे, इशराक पे आने लग जाओगे खुद ही। यू डोंट हैव टू एंड फोर्स दैट्स इट। नॉट इवन अ मस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यस इशराक पढ़ना यस, इज नॉट अ मस्ट, आप नॉट एट फाइव। ऑल मस्ट। एंड मैं वन वैसे मोर ही थिंग, आपको मैं आप छोटी सी, अच्छाई सॉरी। की दिल की बात बता रही हूँ कि अच्छाई का फायदा ये होता है कि वंस यू स्टार्टेड इट्स जस्ट सो अट्रैक्टिव दैट इट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स और इटसेल्फ, और वो खुद अखलाक चेंज मत होगा। खराब करें लोगों के साथ, ये हम्म बात मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुफार से भी गंदे लहजे में पूरे बात तरीके से नहीं की। बात। तो इफ देयर यस इज अ क्रिश्चियन तो उसको यहूद मत कहें, इफ देयर इज अ जूइश तो उसको हाँ इस तरह ना बुलाएं कि वो उसको बुरा लगे। यार मेरे इतने कुलीग्स हैं, ट्रू व्हेन आई ट्रू आस्क देम फॉर डोनेशंस, जब फ्लड रिलीफ होता है, दे हाँ। पे मी लाइक डॉलर्स में, दे डोंट केयर अबाउट इट, वो क्या है मतलब, देयर आल्सो आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पर ये बात याद रखना जरूरी है कि बिफोर मुस्लिम्स वी आर ह्यूमंस फर्स्ट। That's the सो point. Heal the world, make इंसान it a को better इंसान place समझिए। for हाँ you and for me and for the entire human race, है माइकल जैक्सन ने कहा था और बिल्कुल ठीक कहा था। तो पॉइंट इज एक्सट्रीमिज्म पे मत जाएं, और हाँ चैरिटी बिगिंस एट होम। इफ यू थिंक कि आपके लिए एक चीज इनअप्रोप्रिएट है तो आप वो मत करें, और अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट है तो वो करें। नाउ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू डिसाइड इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट। So this was our message that I think जिनको समझ आनी होगी, definitely they're gonna view it. जिनको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं तो they should go ahead and continue doing it. In the end अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है अपने उन लोगों से कि जो लोग मेरी राह पे चलेंगे उनके लिए मैं ही उनका मुहाफिज हूँ। So if you have the faith in Allah, you don't have to worry about any XYZ person कि कौन मुझे रिस्क देता है कौन नहीं देता। इट्स अल्लाह इन द एंड हु हैज टू डिसाइड कि कितना आपने रहना है, कितना क्या रहना है या क्या करना है। Aiza, it was a pleasure having you in a session. Do you have anything else to add on before we guys wrap it up? No, Ali, except for the thing that please do your own research. हमारा जो मजहबी तबका है उसने थोड़ा सा अपने आप को बदनाम कर लिया है, खराब काम करके, खराब इंफॉर्मेशन दे के और खराब चीजें फैला के, हेट्रेड फैला के, एक्सट्रीमिज्म फैला के। और अब इस वजह से इस्लाम जो है एक हवा टाइप चीज बन गया है, विच इज टोटली नॉन प्रैक्टिसेबल, यानी उस वो प्रैक्टिकल रहा ही नहीं। तो Hmm. अपना दीन आप खुद स्टडी करो, देखो कि अल्लाह ने, जब उन्होंने खुद कहा अल्लाह ने कि मैंने अब इस दीन को तुम्हारे लिए आसान कर दिया, हर Hmm. चीज की आसानी है, निकाह की आसानी है, तलाक की आसानी है, फलाने की आसानी है, हर चीज की आसानी आसानी सारे आसानी। रूल्स तो हैं आपके पास, you just have to follow those, इसमें that's it. तलाक की आसानी से मेरी मुराद ये है कि उसमें भी ये नहीं है कि आप लड़ो झगड़ो नहीं, वो भी अमन सुकून के साथ, प्यार ठीक है, मोहब्बत if के you साथ guys दूसरे cannot के stay साथ together, नहीं that's करना। simple as it is, so हाँ, let's इट्स just सिंपल, इट्स let's ओके। let's हाँ, stay away वो from लेकिन each जो other. सोसाइटी ने और वो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ने उसको इतना रिजिड और पॉइंटी करके दिखा दिया है कि अच्छा, तो बस यही है कि अपनी रिसर्च वगैरह खुद करें, अपना पढ़ें खुद, ताकि आपके बच्चे आगे रिसर्चर्स बन सकें Challenge ji, और thank you वो so बेहतर much. रास्ता बताएं। Thank you so much, Aiza. It was a pleasure talking to you. वेलकम। And inshallah, we'll be coming up with more podcasts. Thank you. इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.